Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. So as you know, we have been discussing about the abstract algebra, and in the last lecture we discussed about what? We discussed about the dihedral groups. और लास्ट में मैंने जब वो लेक्चर खत्म किया था मैंने बोला था इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर 1. तो वहां तक आपका यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया है. तो चलिए आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सब ग्रुप्स, रिगार्डिंग द टेस्ट्स फॉर द सब ग्रुप्स, cyclic subgroups, and we will discuss about its theorems. तो subgroups के बारे में पढ़ेंगे, tests for the subgroups and the related theorems. So let's move on. So let's move on. So let's wait. What's happening? Okay. So let's discuss about today's lecture. So before going into the details, so let me talk about some definitions first. So the definition number 1 here is regarding the complex of a group. Complex of a group. So I will be talking about the complex of a group. So let's have a look on the definitions. A non-empty subset, a non-empty subset of a group G of a group, a non-empty subset H of a group G is called a complex. So is called a complex of a group. Is called a complex of a group. So what do you mean by the complex of a group? A non-empty subset of a group G. तो आपके पास कोई ग्रुप G होगा, उसका non-empty subset उठाइए, उसको हम बोलते हैं complex. ठीक है? So this is definition number 1. Now the definition number 2 is the product of the complexes. Product of complexes. So let's have a look on the product of complexes. So here is your definition. So product of complexes. If H and K, if H and K are any two complexes of a group G. So if H and K are any two complexes of a group G, what does it mean? It means they are the subsets of the group G. तो ये दो subsets होंगे इस group G के. तो फिर देखिए product कैसे define किया जाता है. तो then their product is denoted and defined as. तो देखिए बेटा इसको कैसे डिनोट और डिफाइन किया जाता है. दैट इज डिनोट एंड डिफाइंड, दैट इज एच की दैट इज इक्वल टू दिस इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट जो एक्स होगा ये इस टाइप में आना चाहिए. ठीक है? तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी. तो तमाम एलिमेंट्स उठाने आपको जी के जिसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर पाए. तो एक्स इज इक्वल टू एच की. और आप जानते हो एच की का मतलब क्या होगा? एच स्टार की. एंड स्टार इज द अंडरलाइंग बाइनरी ऑपरेशन. And this H goes to H, and this should come from H, and this K comes from this K. So this is the definition of the product of complexes. तो H K, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होगा कि कंपोजिशन क्या हो रही है यहाँ पर. ठीक है? तो अगर एडिशन होगा तो H K स्टैंड्स फॉर H प्लस K. तो इसी तरह अगर आपको यहाँ पर कुछ और बाइनरी ऑपरेशन होगी तो अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर H K का मतलब होगा कि बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप. ठीक है? तो ऑब्वियसली
तो जो एच के होता है, तो इफ एच इज अ कॉम्प्लेक्स, के इज अ कॉम्प्लेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स। तो मीन्स जो अगर एच आपका सबसेट है, के आपका सबसेट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू सबसेट्स अगेन अ सबसेट इन केस ऑफ अ ग्रुप। So the product of complex is again a complex of a group. So this is the definition number second. Now, so let's move on to the definition number third. So that will be regarding the inverse of a complex. So how we are going to define the inverse of a complex. So have a look. So this is inverse of a complex. So let us talk about the inverse of a complex. Now see. Okay. Now see the inverse of a complex. Let H be any complex of a group G. Let H be any complex. Let H be any complex of a group G. Let H be any complex of a group G. Let H be any complex of a group G. Then the inverse of H. Then the inverse of H is denoted is denoted is denoted and defined as is denoted and defined as देखिए बेटा इसको कैसे डिफाइन किया जाता है that is H inverse. So H inverse will be the collection of all the invertible elements of H such that H belongs to H. ठीक है? अब देखिए क्या होगा, जो आपको जो H है इसमें से सारे एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं H, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तो यू हैव बीन गिवन H, तो H आपको दिया गया है, तो H क्या है, आपका सबसेट। तो इन सबसेट्स में सारे एलिमेंट्स जो इस सबसेट के हैं उनका इनवर्स आपको ढूंढना है। और इनवर्सेस कहां पर मिलेंगे, इनवर्सेस ग्रुप में होता है ना, तो उन इनवर्सेस का आप कलेक्शन लीजिए, उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप जो ये डेफिनेशंस है ये आपको क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप? तो कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप मींस सिंपली द सबसेट ऑफ अ ग्रुप G. And later on, I defined the product of the two complexes. The product of two complexes, if H and K are any two complexes of a group G, then HK is equal to X belongs to G, such that X is equal to HK. And why HK means there will be a binary operation in between H and K. And obviously, the product of two complexes is again a complex. And then I discussed about the inverse of a complex, that if H is a complex, then H inverse is equal to H inverse such that H belongs to H. So this is the definition of the inverse of a complex. So I hope it is clear. Now let us move further. तो चलिए कुछ theorem discuss करेंगे. We will discuss about some theorem. So wait. तो चलिए theorem के बारे में discuss करेंगे. So let's discuss about some theorems. अब देखिए बेटा, so here is your theorem number 1. So we will discuss about this theorem. So this is your theorem. So here, so let me write down the statement. So this is the theorem. Let's talk about this theorem. Now this is the theorem. If H and K are any two complexes, if H and K are any two complexes of a group G, of a group G, then अब देखिए, if H and K are any two complex of a group G, तो then what happens? So then HK inverse, that is the product of the two complex, तो मैंने define किया था उसका inverse, that is always equal to K inverse H inverse. तो ये आपको define करना है, ठीक है? तो सॉरी, ये आपको prove करना है, तो you have to prove this. So let's talk about the proof.
सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रूफ। अब चलिए प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लेट, अब हम जानते हैं ये एच की आपके पास एक सेट है, ये भी आपके पास एक सेट है। हमें पता है कि दो सेट्स कैसे हम दिखाते हैं इक्वल। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स दिए जाएंगे तो हम कैसे दिखाते हैं कि ये सबसेट्स बराबर हैं। तो वी प्रूव देम दैट दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इफ ए इज अ सेट, बी इज अ सेट, तो वी प्रूव दैट ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए। तो खाली हमें प्रूव करना है कि दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो जब हम प्रूव करेंगे दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब वो बराबर होंगे। तो यही टेक्निक हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी यही टेक्निक यूज होगी बेटा, ठीक है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रूफ। अब देखिए, so let x be any arbitrary element of H. So let x be any arbitrary element. Let x be any arbitrary element of HK inverse. ठीक है। So then by definition, तो ये x, तो आप बोल सकते हो तो ये x किसके बराबर होगा, ये इस टाइप का होगा। फिर तो ये इस टाइप का एलिमेंट आपको आएगा। तो x h के होल इनवर्स को अगर बिलोंग करेगा तो जो इसमें एलिमेंट्स है वो किस टाइप के हैं, जैसे मैंने बताया था। देखिए जब मैंने बोला था जो h इनवर्स है, h इनवर्स में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज h इनवर्स सच दैट h बिलोंग्स टू h। ठीक है। और हम जानते हैं जो आपके पास h के में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, वहां पर इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, x के स्मॉल h के टाइप के एलिमेंट्स, वायर h बिलोंग्स टू h एंड दिस k बिलोंग्स टू k। अब देखिए जब x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है h के का, इसका मतलब ये किस टाइप का होगा, ये होगा आपका इस टाइप का एलिमेंट। इसमें कैसे किस टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज एच की टाइप एलिमेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है। अब उसका इनवर्स होगा दैट इज एच की होल इनवर्स। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्सेस। सो इस टाइप का होगा। तो where it is clear, what can you say about this h, where it is understood that h belongs to this capital H and this small k belongs to capital K. Okay, तो और तो x को मैं लिख सकता हूं दैट इज k इनवर्स h इनवर्स। ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो कुछ जो लेक्चर सीरीज में हमने पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, वहां पर हमने किया था। इसको अगर याद होगा, वहां इसको बोलते हैं सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। ये मैंने नाम वहां पर बोला था, इसको ये बोलता है, इसका ये नाम है। ठीक है। सॉक्स शूज प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपके कोई ये बुक फॉलो कर रहा है जोसेफ ए गैलियन की, वहां पर इसका नाम यही दिया गया है, सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये नाम इसका जोसेफ ए गैलियन पे दिया गया इस प्रॉपर्टी का, दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज होगा। तो x इज इक्वल एच के होल इनवर्स दैट इज कॉल्ड के इनवर्स एच इनवर्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ग्रुप में आपकी होल्ड होती है बेटा। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब सी, वेट, अब चलिए बेटा देखिए इसके बाद तो और अब देखिए अब x के किस टाइप का एलिमेंट आ गया, तो x आपका आ गया इस टाइप का, दैट इज k इनवर्स h इनवर्स। अब मैं बोल सकता हूं जो k इनवर्स किस में होता है, ये k और x इनवर्स आपका h इनवर्स में होगा, तो ये आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो दैट इज हमने यहां तक प्रूव किया जो आपका x होगा it belongs to k inverse h inverse. ठीक है। but what was x was an arbitrary element of this set. तो जो ये सेट है h के होल इनवर्स, इसका आर्बिट्री एलिमेंट है, और हमने प्रूव अप क्या किया, ये इसका एलिमेंट निकल आया। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ h के इनवर्स टर्न्स आउट टू बी द एलिमेंट ऑफ k इनवर्स h इनवर्स। तो इसका मतलब है हर कोई एलिमेंट जो h के इनवर्स में होगा वो k इनवर्स h इनवर्स में भी होगा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट h के इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा बेटा यहां पर, तो वहीं पे बोलूंगा यहां पर कि जो आपका, सो दिस शोज दैट, आप बोल सकते हो दिस शोज दैट
This shows that, तो this shows that जो आपका ये h के whole inverse होगा, it is a subset of k inverse h inverse. So I hope it is clear. तो call this as equation, call this as statement number first. I hope it is clear. So let's move further. अब देखिए, अब हम दिखाएंगे ये इसका सबसेट है, तो कन्वर्सली अब देखिए हम क्या करेंगे. Conversely, let y be any arbitrary element. Let y be any let y be any arbitrary element. Let y be any arbitrary element of a group. So let y be any arbitrary element of k inverse h inverse. ठीक है. तो then what does it mean? तो then y किस टाइप का होगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, that is k inverse h inverse. Where it is understood, जो आपका ये k inverse आएगा, तो k inverse कहां से आएगा, it comes from k inverse, and जो आपका ये h inverse आएगा, it comes from this h inverse. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब जो आपका ये k होगा ये k से आएगा, और जो h होगा ये h से आएगा. इसका मतलब यही है. ठीक है. तो और तो मैं बोल सकता हूं जो आपको y होगा ये आपका होगा h के होल इनवर्स. ठीक है. तो h के होल इनवर्स का मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, क्योंकि पहली एंट्री आ रही है h से, दूसरी एंट्री आ रही है k से. इसका मतलब एज ए होल ये एंट्री कहां से आएगी, h k से, लेकिन उसका इनवर्स है तो h के होल इनवर्स से आएगी. ठीक है. तो इसका मतलब है दैट जो y है आपका बेटा, इट बिलोंग्स टू व्हाट, इट बिलोंग्स टू h के होल इनवर्स. बट व्हाट वाज y? y वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ k इनवर्स h इनवर्स. और प्रूव क्या किया हमने, that it belongs to h k whole inverse. It means that every element of k h inverse turns out to be the element of h k inverse. तो इसका मतलब वो उसका सबसेट होगा. ठीक है. So this shows that what it shows that जो आपका ये k inverse h inverse होगा बेटा, it will be a subset of h k whole inverse. तो let me call this as second. तो कंबाइन कीजिए, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कीजिए तो क्या क्या निकलेगा, तो हमें निकलेगा दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर. तो सबसेट्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, तो व्हाट डज इट मीन, तो सबसेट्स ऑफ ईच अदर का मतलब है ये इक्वल है. तो इसका मतलब जो होगा, जो h k होल इनवर्स होगा, it is equal to k inverse h inverse. So this complete is the proof. So hence proved, and this is true for any complexes. ठीक है. तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रू है. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है सबसेट ऑफ अ ग्रुप G. तो आई होप इट इज क्लियर. Now so let's move further now. Now let's talk about some more theorems. तो चलिए अब हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज about the subgroups. Okay, so now let's talk about the subgroups. Now let's talk about the subgroups. अब देखिए सबग्रुप किसको बोलते हैं. सबग्रुप हम किस चीज को बोलते हैं. So a complex, so a non-empty subset, a non-empty subset. तो नॉन एम्प्टी सबसेट को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो कभी कभार हम सिंपली बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एच ऑफ अ ग्रुप जी. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स स्टैंड्स फॉर द सबसेट. नॉन एम्प्टी सबसेट, तो नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, तो नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी is said to be a subgroup, is said to be a subgroup. A non-empty subset H of a group G is said to be a subgroup of G. Is said to be a subgroup of G if H itself, forms a group, if H itself forms a group under the operation of G.
ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट एच है किसी भी ग्रुप का, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सब ग्रुप है, अगर ये खुद भी ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। तो इसका मतलब देखिए क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, सी इसका मतलब बेटा देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए अगर आपके पास है ना ये सपोज दैट यू हैव अ ग्रुप जी, ठीक है, तो ये आपके पास दिया गया है ग्रुप जी, सो दिस इज अ ग्रुप जी, ठीक, सो सो दिस इज अ ग्रुप जी, ठीक है, तो ये आपके पास दिया गया है, ये ग्रुप जी है आपका, ठीक है, तो इसके अंदर आप एक सबसेट उठाइए, तो ये एच है, और यहां पर आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो अगर ये एच बी विद रेस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन एच स्टार खुद ग्रुप बनाएगा, ठीक है, तो ये तो है दिया गया है ग्रुप, ये तो ग्रुप है ही, तो अगर ये एच भी ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा, तो this, if this H itself is a group under the operation of G, so if G is a group with respect to star or H being the subset of G, H being the subset of G, तो subset of G का मतलब H being the complex of G, तो अगर इसका सबसेट होगा और खुद भी ग्रुप बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, विद रेस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर हम इसको बेटा बोलते हैं कि ये सब ग्रुप है, क्या है, तो फिर हम इसको बोलते हैं इट इज ए सब ग्रुप। तो आई होप इट इज क्लियर, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि क्या मैंने बोला, मैंने बोला अगर आपके पास G दिया गया है, ठीक है, तो G आपके पास दिया गया है एंड यू नो दैट G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो फिर इस ग्रुप में आप सबसेट उठाइए H, क्या उठाइए H, अगर ये H भी खुद ग्रुप होगा, अगर ये H खुद भी ग्रुप होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G, जो G पे बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो ये H होगा ये खुद भी ग्रुप बनाएगा और ये G का सबसेट होगा, फिर हम इसको बोलते हैं सब ग्रुप, क्या बोलते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं सब ग्रुप। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, तो आई होप इट इज क्लियर, तो यही है आपकी डेफिनेशन, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G is said to be a subgroup of G if H itself forms a group under the operation of G, and operation means under the binary operation of G, it is understood now, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अब देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, सी फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नंबर वन, आप जानते हैं देखिए, you know that this z is a integer, तो integer form is a group, integer किसका ग्रुप होता है, तो सॉरी इट फॉर्म इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि आपका जो है ये रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ये भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह आप देखोगे कि जो ये r है r अंडर एडिशन इट आल्सो फॉर्म्स द ग्रुप, ठीक है, तो हम बोलेंगे दीज आर all सब ग्रुप्स ऑफ व्हाट, these are all subgroups of C plus. C is a set of complex numbers. So the set of complex numbers under addition also forms the group. तो अगर आप देखोगे Z, Z is a subset of Q, Q is a subset of R, and R is a subset of C, ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर एडिशन इट इज अ सब ग्रुप ऑफ Q, and Q in turn is a subset of R under addition, and R in turn is a subset of C under addition. तो हम सिंपली बोल सकते हैं Z, Q, R, these are all the subgroups of, these are all the subgroups of the set of complex numbers under addition. या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इंटीजर जो है, तो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबग्रुप ऑफ Q, इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबग्रुप ऑफ R, and set of real numbers is a subset of C, means C means the set of complex numbers. तो I hope it is clear, ठीक है, इसी तरह अगर आप इसी तरह अगर आप देखोगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और डिस्कस किया था, that was we have also discussed this in the previous lecture, alternating subgroup में जब alternating group, ठीक है, याद है alternating group, तो an is a subgroup, an is a subgroup of what, तो an is a subgroup of Sn, याद है, तो what is this an stands for the alternating group, alternating group, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मैंने वहां पर एक करवाया था कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है दैट इज द सेट, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, इट इज द सेट ऑफ व्हाट,
set of all even permutations of all even. I have discussed it in the previous lecture. जब मैंने symmetric group discuss किया था वहां पर मैंने बोला था कि the set of all even permutations forms a group. Forms a, तो जो ये सेट होता है ऑफ ऑल द इवन परम्यूटेशंस ये बेटा क्या बनाता है, ये आपका ग्रुप बनाता है। और वहां पर मैंने बोला था इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। और ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होगा, इट इज क्लियरली अ सब ग्रुप ऑफ एसएन। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये सिमेट्रिक ग्रुप है, इसी के अंदर है ना ये सेट ऑफ इवन, ये दैट इज द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस, एसएन का ही सबसेट है सबसेट। तो एन इज क्लियरली द सबसेट ऑफ एसएन। ठीक है, और ये खुद भी ग्रुप बनाता है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, ये इसका सब ग्रुप होगा। और हम जानते हैं जो ऑर्डर ऑफ ए एन होगा, अगर आपको याद होगा, दैट इज एन फैक्टोरियल बाई 2। ये थ्योरम भी मैंने करवाई है, क्योंकि मैंने बोला था कि आउट ऑफ एन फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, एन फैक्टोरियल बाई 2 परम्यूटेशंस आर इवन परम्यूटेशंस एंड एन फैक्टोरियल बाई 2 परम्यूटेशंस आर ऑड परम्यूटेशंस। और वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस फॉर्म्स अ ग्रुप, और उसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और क्लियरली ए एन तो हम जानते हैं इट इज अ सबसेट ऑफ एसएन, तो यहां पर हम बोलेंगे जो ए एन है इट इज अ सब ग्रुप ऑफ एसएन। ठीक है, तो ये मैंने वहां पर बोला था कि मैं बाद में इसको बोलूंगा आने वाले लेक्चर्स में, एन को मैं हमेशा बोलूंगा इट इज अ सब ग्रुप ऑफ एसएन। वहां पर मैंने सब ग्रुप डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम एन को सब ग्रुप बोले एसएन का, क्योंकि हमने आज सब ग्रुप की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, सो इसी तरह हम बोलेंगे एक और, अगर आपको जो प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने, तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, अगर आपको याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि जो आपका है ये क्या मैंने बोला था कि जो सेट ऑफ रोटेशंस हैं किसी भी डायहेड्रल ग्रुप के, तो सेट ऑफ रोटेशंस उठाइए डायहेड्रल ग्रुप के, वो खुद भी ग्रुप बनाते हैं। और हम जानते हैं जो सेट ऑफ रोटेशंस होंगे वो सबसेट्स होते हैं डायहेड्रल ग्रुप के। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेट ऑफ रोटेशन है, एक तो ये डायहेड्रल ग्रुप का क्या है, सबसेट, और खुद भी ग्रुप बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, हम इसको बोलेंगे यहाँ पर ये इसका सब ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे सिंपली हम, द सेट ऑफ रोटेशंस इन डीएन इज अ सब ग्रुप ऑफ डीएन, इज अ सब ग्रुप ऑफ डीएन। तो चलिए बेटा, तो यही मैं लिखूंगा, तो यह मैं लिखूंगा यहां पर, द सेट ऑफ रोटेशंस, द सेट ऑफ the set of rotations of the set of rotations is a subgroup, is a subgroup of dn. And what is this dn? dn is a dihedral group of n regular polygon. ठीक है, और dn मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया था, ये इस टाइप का होता है, दैट इज x स्क्वायर, फिर x क्यूब, so on, that is x raised power n, which is equal to identity, और ये होता है y, and y stands for the reflection, then comes xy, then comes x square y, and so on, that is x raised power n minus 1 y। और इनको मैंने बोला था कि ये आपका बनाता है rotations, and these are your rotations, and these are your reflections। तो I have discussed these things in the previous lecture। और यहाँ पर जो ये rotations का है, that is x square, so on, that is x raised power n, this is equal to identity। तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो इसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो वो बाद में मैं डिफाइन करूंगा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्लियरली इट इज अ सबसेट ऑफ डीएन, और ये खुद भी क्या है, और ये खुद भी ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, ग्रुप। तो इसका मतलब इसका क्या होगा ये, ठीक है, तो क्लियरली ये इसका सबसेट है डीएन का, और ये खुद भी ग्रुप बनाता है, तो इसको यहाँ पर हम बोलेंगे ये इसका क्या है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ सब ग्रुप, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ व्हाट, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ डीएन। तो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। तो इसी तरह अगर आप देखोगे एक और एग्जांपल हमने की थी, दैट इज द फोर्थ पार्ट। अगर आपको याद रहा होगा जब हमने जनरल लीनियर ग्रुप डिस्कस किया था और स्पेशल लीनियर ग्रुप डिस्कस किया था, तो दैट वाज दिस। तो एस एल एन सी, मैंने वहां पर बोला था कि मैं ये लास्ट में आपको बोलूंगा ये सब ग्रुप होता है इसका। ठीक है, वहां पर मैंने ये टर्म यूज नहीं की थी क्योंकि सब ग्रुप वहां पर हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो एस एल एन सी इज व्हाट,
is a subgroup of general linear group this GLNC. ठीक है, अब ये GLNC क्या है? तो इट इज ए जनरल लीनियर ग्रुप. क्या बोलते हैं इसको? जनरल लीनियर ग्रुप. तो जनरल लीनियर ग्रुप किसका है बेटा? तो इट इज ए जनरल लीनियर ग्रुप. तो इट इज ए जनरल लीनियर ग्रुप of n cross n non singular matrices. ठीक है, whose entries are from C. C stands for the set of complex numbers. ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. ये आपका है GLNC. तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस. ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. ठीक है, such that mod of A is not equal to 0, means the matrices are singular, sorry, non-singular. तो non-singular matrices ही आपके पास invertible होते हैं. ठीक है, और जो AIJ होंगे, what are these AIJs? These are the entries of A. These are the entries of A. So those entries come from the set of complex numbers. तो ये आपका होता है GLNC. तो इसी तरह हमने फिर किया था define SLNC. तो ये SLNC क्या होता है? Again, it is the collection of the matrices of order m, sorry not m, n cross n. ठीक है, ऊपर भी n cross n है तो यहां पर भी n cross n ही लेंगे. n comma n means order n है such that determinant of A is equal to 1. और जो AIJs होंगे ये आएंगे C से. ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस with whose determinant is equal to 1 with unit determinant with determinant equals to unity. तो इसका मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं जो SLNC होगा, SLNC है, ये मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने लेक्चर नंबर प्रॉब्ली इस लेक्चर सीरीज का 8th 9th लेक्चर है probably, I don't remember, but वही in the beginning of this lecture series I have discussed about these things. तो ये आपका क्लियरली इसका सबसेट आता है. किसका सबसेट आता है? तो क्लियरली जो आपका है ना ये, तो जो आपका ये SLNC है, इट इज क्लियरली सबसेट ऑफ GLNC. तो और ये खुद भी ग्रुप बनाता है. क्या बनाता है? तो ये आपका ग्रुप है जनरल लीनियर ग्रुप, और ये भी ग्रुप है. तो इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे ये इसका क्या है? फिर तो यहां पर हम एक टर्म यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे इसका सब ग्रुप है. तो आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, और इस SLNC को हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप. इसको हम बोलते हैं स्पेशल, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप. स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. ठीक है, और डेफिनेशन ये है, ऐसे डिफाइन किया जाता है. और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया है कि दोनों ये ग्रुप बनाते हैं. और ग्रुप बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स मूव फर्दर. अब इसके बाद देखिए, अगर आपके पास G है ना ग्रुप, वी नो दैट every group is a subset of itself. तो वो खुद भी सब ग्रुप कहलाएगा. ठीक है, तो G अगर है ग्रुप और ये E, खाली ये सेट उठाओ आइडेंटिटी जिसमें होंगी, ये क्लियरली सब ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, और द सब ग्रुप्स ऑफ एनी ग्रुप. ठीक है, तो कोई भी ग्रुप आपके पास होगा ना, कोई भी ग्रुप आपके पास होगा G, तो G और ये सेट आइडेंटिटी उसके हमेशा सब ग्रुप्स होता है. ठीक है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स. These are known as trivial. क्या बोलते हैं इनको? ट्रिवियल सब ग्रुप्स. तो इनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलते हैं. ठीक है, ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलो या इम्प्रॉपर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स.
अब इनके अलावा जो कोई भी सब ग्रुप होगा ना बेटा, इनके अलावा, इसके अलावा अगर कोई भी सब ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। एंड एनी अदर सब ग्रुप, एंड एनी अदर, and any other subgroup is known as a proper, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर, क्या बोलते हैं, प्रॉपर व्हाट, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब देखिए, अगर आपके पास जी है तो जी आपके पास ग्रुप है, तो ये दो ये जी और ई, इसके हमेशा सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स, या इनको सिंपली हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब इसके अलावा अगर कोई सब ग्रुप ऐसा है एच, जो कि ना जी के बराबर है ना ही आइडेंटिटी के बराबर है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप, या दूसरा नाम उसको है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इज अंडरस्टूड नाउ, एक ट्रिवियल होगा तो दूसरे को बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको ये कंटेंट्स करवाए, तो जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बोली, द कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप, एंड मैंने आपको बोला द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और फिर मैंने डिफाइन किया द इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, और फिर मैंने डिफाइन किया सब ग्रुप क्या होता है, और सब ग्रुप से कुछ एग्जांपल डिस्कस किए, ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर हम डिस्कस करेंगे द क्राइटेरियाज ऑफ द सब ग्रुप। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, जो बेसिक डेफिनेशन हमें चाहिए थी, इनकी हमें रिक्वायरमेंट थी इस टॉपिक को फर्दर चलने के लिए, वो हमने डिस्कस किया है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे किया जाता है, और प्रॉपर्टी मैंने यू, और एक थ्योरम करवाई मैंने, एच के इज इक्वल टू एच के होल इनवर्स इक्वल के इनवर्स एच इनवर्स, और मैंने सब ग्रुप्स डिफाइन किए, एंड आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ द सब ग्रुप्स, एंड आई होप एंड यू गॉट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द क्राइटेरियाज ऑफ द सब ग्रुप्स। बाय बाय, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।